آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 4 مئی 2026 اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ ایرانی نیوی نے امریکی جنگی جہازوں پر داغے وارننگ شاٹس۔ ہورموز میں کروز میزائل اور ڈرون سے گھیرا بندی کا ویڈیو جاری۔ پھر بڑی جنگ کی آگ۔ فجیرہ کے تیل ڈپو پر ایرانی ڈرون حملے کے بعد لگی آگ۔ دبئی اور شارجہ ایئرپورٹس پر تمام اڑانیں روکنے کی خبر۔ ہورموز میں ساؤتھ کوریا کے جہاز کے انجن روم میں دھماکہ، 24 کرو ممبرز کی جان خطرے میں، حملے کا شک گہرایا۔ ہیبرون میں اسرائیلی بلڈوزروں کے آگے لیٹ گیا بزرگ فلسطینی، گھر ٹوٹنے کے غم کے بیچ دکھایا دوبارہ تعمیر کرنے کا بلند حوصلہ۔ ویسٹ بینک میں اسرائیلی کمانڈر میجر جنرل ایوی بلوت کا زہریلا خلاصہ، 1967 کے بعد فلسطینیوں کو سب سے تیز رفتار سے مارنے کا اقرار۔ اور حزب اللہ کے چیف نائم قاسم نے اسرائیلی منصوبوں کو دیا چیلنج، کہا ریزسٹنس ہی طے کرے گی لبنان اور خطے کا مستقبل۔ ان ہیڈ لائنز کے علاوہ بھی ہیں کئی اہم خبریں اور خبریں بہت ہیوی ہیں۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ یہ ہے اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیل سے خبروں کا یہ سلسلہ، اور سبھی خبریں 4 مئی کی لگ بھگ شام کی ہی ہیں، لہٰذا تاریخ نہیں بتاؤں گا، خبریں سنیے۔ بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں پورے مڈل ایسٹ میں۔ ایران نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں اس کی نیوی امریکی جنگی جہازوں یعنی US ڈسٹرائرز پر وارننگ شاٹس داغتی نظر آ رہی ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے کروز میزائل، راکٹ اور ڈرونز کے ذریعے یہ وارننگ دی ہے۔ ہم کریڈٹ دیتے ہیں ایرانی میڈیا کو، اور یہ انہی کا ویڈیو ہے۔ حالانکہ امریکی فوج سینٹکام کا کہنا ہے کہ ان کے جہازوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہورموز اب جنگ کا نیا میدان بن چکا ہے، اور UAE سے اور امریکہ سے ایک نئے ٹکراؤ کے بالکل مہانے پر کھڑا ہے ایران۔ دوسری خبر سنیے۔ ہورموز کی لہروں سے لے کر دبئی کی گلیوں تک ایران اور امریکہ کے بیچ ٹینشن اب ایک بہت ہی خطرناک موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی کہ UAE کے فجیرہ علاقے سے ایک بے حد پریشان کرنے والی خبر آ رہی ہے، جہاں ایران کے ڈرون حملے کے بعد ایک بڑے تیل ڈپو میں آگ لگ گئی۔ خبر یہی بتا رہی ہے 4 مئی کی شام کو، بلکہ یوں کہیں کہ 9 بجے یہ ڈیولپ ہو رہی خبر۔ فجیرہ سرکار کے میڈیا آفس نے سوشل میڈیا پر اس حملے کی کنفرمیشن کر دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس حملے کے بعد علاقے میں دھوئیں کا غبار دیکھا گیا، اور بچاؤ ٹیمیں آگ پر قابو پانے کی اب بھی کوششوں میں جٹی ہیں۔ ٹینشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کا اثر اب سیدھا فلائٹس پر پڑ رہا ہے۔ پچھلے کچھ منٹوں سے دبئی اور شارجہ ایئرپورٹس پر سبھی فلائٹس روک دی گئی ہیں۔ مسافروں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اچانک لیے گئے اس فیصلے سے پورے علاقے کا ہوائی راستہ ٹھپ ہو گیا ہے۔ دبئی کے ایئرپورٹ سے جڑی یہ خبر بعد میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس سے آنے والی خبریں بتا رہی ہیں کہ وہاں کے جبل علی پورٹ اور دبئی پورٹ کے قریب زوردار دھماکے سنے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے داغی گئی میزائلوں کے جواب میں UAE کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہو گیا ہے، اور آسمان میں ہی ان خطروں کو ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو اس بارے میں جو لاسٹ ہم نے سینٹنس بتایا آپ کو، وہ اس بارے میں آپ کو خبر دی تھی کہ ایئر ڈیفنس سسٹم نے 3 انٹرسیپٹرز داغ کر ایران سے آئے میزائلوں کو گرا دیا۔ کنفرمیشن UAE کی طرف سے کہ ایران کے میزائل حملے ہوئے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسٹریٹ آف ہورموز کے علاقے سے ایک اور بڑی اور فکر پیدا کرنے والی خبر سامنے آئی ہے، جہاں ساؤتھ کوریا کے ایک کارگو شپ، ایک مال واہک جہاز میں زوردار دھماکہ اور آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ ایک بلک کیریئر، ایک بہت ہیوی سائز جہاز بتایا جا رہا ہے۔ ساؤتھ کوریا کی شپنگ کمپنی HMM کے اسپوکس پرسن نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ جہاز کے انجن روم میں آگ لگنے کی رپورٹ ملی، اور اس کے پیچھے کی وجہوں کی جانچ کی جا رہی ہے۔ فی الحال ایک جہاز کے جلنے کی کنفرمیشن ابھی الجزیرہ نے بھی کی ہے، اور یہ ابوظہبی یا یوں کہیں کہ UAE کے ساحل کے بالکل قریب بتایا جا رہا ہے۔ ساؤتھ کوریا کے فارن منسٹر نے بھی اس دھماکے اور آگ کی کنفرمیشن کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا، جہاز پر کل 24 کرو ممبرز سوار تھے، جن میں 18 ودیشی شہری تھے اور 6 ساؤتھ کورین شامل ہیں۔ ابھی تک یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ محض ایک حادثہ ہے یا اس کے پیچھے کسی طرح کا حملہ ہے۔ تازہ اپڈیٹس حملے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ دوستو، اسٹریٹ آف ہورموز میں جس طرح سے حالات بنے ہوئے ہیں یا بدل رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پروجیکٹ فریڈم کے بیچ ایک کے بعد ایک جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس نے دنیا کی سپلائی چین کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے بیچ بڑھتی ٹینشن کے دوران ساؤتھ کوریا کے اس جہاز کے ساتھ ہوا حادثہ کئی بڑے سوال کھڑے کر رہا ہے۔
हालात एक बड़ी जंग के बन रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक खाली जहाज पर हुए ईरानी हमले की कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत की गई है कतर की तरफ से। कतर के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने इसे इंटरनेशनल कानूनों और समुद्री जहाज़ों की आवाजाही की आज़ादी के खिलाफ बताया है। कतर के बयान में साफ कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे अहम रास्तों को अपनी मांगें मनवाने के लिए दबाव बनाने के तौर पर इस्तेमाल करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कतर ने मांग की है कि इस रास्ते को बिना किसी शर्त के फ़ौरन खोला जाना चाहिए। उसका कहना है कि इस रास्ते के बंद होने से इलाके के सभी मुल्कों के कारोबार को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कतर ने पड़ोसी मुल्कों की चीज़ों पर ईरान के इन हमलों को रोकने पर भी जोर दिया है। साथ ही उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में यूएई के साथ खड़े होने की बात कही है। हॉर्मुज़ के हालात को लेकर अब गल्फ के ममालिक के बीच भी बेचैनी साफ देखी जा रही है। कल तक मैं आपको खबरें दे रहा था कि शायद कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकल आए, कोई बातचीत हो जाए, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ हमले की खबरें दे रहा हूं क्योंकि सीन बदल चुका है। खबर सुनिए, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जुबानी जंग में अब एक नया मोड़ आ गया है। ईरान ने खुद को एक सुपर पावर करार दे डाला है। जी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वो वीडियो हम नहीं दिखा रहे, लेकिन क्या कहा गया है उस वीडियो में वो सुन लीजिए। इस वीडियो में ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई एक रिपोर्टर के सवाल का बेहद बेबाक जवाब देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है या सुना जा सकता है, सुनाऊंगा नहीं, बता दे रहा हूं कि जब एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि अमेरिका एक सुपर पावर है तो आप पीछे क्यों नहीं हट जाते, तो इस्माइल बागई ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, हम भी एक सुपर पावर हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि ईरान का ये नया भरोसा या यूं कहें कि नया कॉन्फिडेंस डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के बाद उभरा है, जिसने ईरान को अपनी ताकत दिखाने पर मजबूर कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमरीकी जंगी जहाज़ों का रास्ता रोकने के बाद ईरान अब खुद को ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी ताकत के तौर पर पेश कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि ये क्लिप डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि ईरान अब पीछे हटने के बजाय बराबरी की टक्कर देने की बात कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी टेंशन और ईरान के हमलों की वजह से दुबई एयरपोर्ट की रौनक कम हो गई है। दुबई के मीडिया ऑफिस की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के महीने में पैसेंजर्स की तादाद में 66% यानी 66% की भारी गिरावट दर्ज की गई। ये मई में आया है रिपोर्ट कार्ड पूरा निकल कर। दुनिया के सबसे मसरूफ, सबसे बिजी रहने वाले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस दौरान सिर्फ 25 लाख मुसाफिर पहुंचे मार्च में, जो पिछले साल के मुकाबले बहुत कम है। बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच जारी हमलों की वजह से हवाई रास्ते यानी एयर स्पेस और फ्लाइट्स की शेड्यूल पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। खासकर जब से ईरान ने यूएई पर पलटवार किया है, तब से सिक्योरिटी के मद्देनज़र कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें यहाँ के लिए रोक दी हैं या रास्ते बदल लिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इस इलाके में चल रही खींचतान ने दुबई की रफ्तार पर एक बड़ा ब्रेक लगा दिया है। अमेरिका ने अपनी हिरासत में लिए गए ईरानी जहाज़ के 22 क्रू मेंबर्स को पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मंडे को बताया कि वाशिंगटन की तरफ से एक कदम भरोसे को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया और इन लोगों को आज ही ईरानी अफसरों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरानी जहाज़ तूस्का को अमरीकी फ़ौज ने, अमरीकी नेवी ने तब निशाना बनाकर पकड़ा था जब उसने 19 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हटने के अमरीकी नेवी के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया था। तो कहा कि हमारी नेवी ने पकड़ लिया कि भैया साथ चलो फिर, तो उसी के क्रू मेंबर्स को छोड़ा गया है। बात ईरान से बाहर की, फ़लस्तीन के हेब्रोन शहर के साउथ में मौजूद एक इलाका है देरात। यहाँ से एक बहुत ही गमगीन मगर हौसले से भरी तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक बुजुर्ग फ़लस्तीनी अपनी आंखों के सामने अपना घर टूटता देख ज़मीन पर लेट गया, हाथ कान के नीचे लगा लिए जैसे फिल्म देख रहा हो, जबकि इसराइली बुलडोज़र उसके आशियाने को मलबे में तब्दील कर रहे थे। इस मुश्किल घड़ी में भी उस बुजुर्ग के हौसले पस्त नहीं हुए। उसने मीडिया से बात करते हुए बड़े ही मजबूत अंदाज में कहा, इसमें कुछ भी नया नहीं है और हमें कोई हैरानी नहीं हुई। वो गिराते रहेंगे और हम फिर से बनाते रहेंगे। क्या इस हौसले को सलाम कीजिए। मकामी लोगों का कहना है कि इसराइली फ़ौज अक्सर बिना किसी ठोस वजह के फ़लस्तीनियों के घरों को, इस ज़मीन के मालिकों के घरों को निशाना बनाती है। लेकिन मलबे के बीच लेटे हुए इस बुजुर्ग की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। यकीन मानिए, इसे फ़लस्तीनी आवाम की हिम्मत और ज़मीन से उनकी मोहब्बत की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। किससे लड़ रहे हैं लोग? आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बैंक में तैनात इसराइली फ़ौज के सेंट्रल कमांड के हेड
मेजर जनरल एवी ब्लुथ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने बड़े विवाद को, एक बड़े तनाज़े को जन्म दे दिया है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक उसने उस पॉलिसी का बचाव किया है जिसके तहत पत्थर फेंकने वाले फ़लस्तीनियों पर सीधे गोलियां चलाने की इजाज़त है, जबकि यही कानून वहां रहने वाले यहूदी सेटलर्स पर लागू नहीं होता। जब उससे इस फ़र्क के बारे में पूछा गया तो उसने इसे समाज के हालात, सोशियोलॉजिकल कंसिडरेशंस का हवाला देकर जायज़ ठहराने की एक अजीब सी कोशिश की। मैं कुछ और कहना चाहता था। उसने साफ लफ्ज़ों में माना कि दोनों गुटों के साथ अलग अलग तरह का बर्ताव किया जाता है। इतना ही नहीं, इस्राएली कमांडर ने वेस्ट बैंक में हो रही मौतों पर एक खौफनाक खुलासा करते हुए कहा, हम उन्हें उस रफ्तार से मार रहे हैं जैसा हमने 1967 के बाद कभी नहीं किया। उसका यह बयान खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किस हद तक बढ़ा दिया गया है। वेस्ट बैंक में भी हालात ठीक नहीं है। बढ़ते हैं आगे, लेबनान चलते हैं। हिज़्बुल्लाह रेजिस्टेंस मूवमेंट के चीफ शेख नईम कासिम ने 4 मई को एक बड़ा बयान जारी करते हुए इसराइली मंसूबों को पूरी तरह नाकाम करने का ऐलान किया है। नईम कासिम ने साफ कहा है कि इसराइली हुकूमत के नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे क्योंकि रेजिस्टेंस मूवमेंट पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला कर रही है। शेख नईम कासिम ने उन तमाम गलत फहमियों को खारिज कर दिया कि लेबनान एक कमज़ोर मुल्क है या किसी और की सरपरस्ती में है। उन्होंने बताया कि इसराइली हुकूमत अमेरिका की शह और उसकी मदद से लेबनान के ख़िलाफ़ अपनी एग्रेशन जारी रखे हुए है। इस बयान के मुताबिक इसराइल का असली मकसद लेबनान के लोगों को उनके हक़ से महरूम करना और उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करना है। इसके उलट हिज़्बुल्लाह के चीफ ने दावा किया कि हमारा इकलौता मकसद अपनी छीन ली गई ज़मीनों को आज़ाद कराना है। दोस्तों, शेख नईम कासिम ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि हम इस खित्ते की तारीख के एक ऐसे बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं जहां इसराइल अमेरिकी हुकूमत के साथ मिलकर हम पर हमले कर रही है। हिज़्बुल्लाह चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि लेबनान का मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, आने वाली नस्लें और इस इलाके की आज़ादी सिर्फ डटे रहने से ही तय होगी। उन्होंने कहा कि दुश्मन चाहे कितना भी घमंडी या हमलावर क्यों ना हो जाए, वो हिज़्बुल्लाह की ताकत के आगे अपने मंसूबे कभी पूरे नहीं कर पाएगा। फ़िलहाल इन ख़बरों के साथ ही मेरी कुछ और ख़बरों पर नज़र है, इसलिए आखिरी ख़बर में 1-2 लफ्ज़ इधर से उधर मेल फीमेल हो गए क्योंकि अभी बहुत सी हैपनिंग्स सामने आ रही हैं। ठीक है, अभी वो कंफर्म है कि दुबई और शारजा के लिए फ़्लाइट्स जो बाउंड थी वो सब होल्ड पर हैं या डाइवर्ट कर दी गई हैं। मामला ठीक नहीं है, मामला गड़बड़ है और जहाज़ों में आग लगने की ख़बरें भी आ रही हैं। ईरान के ऑफिशियल्स ने कहा है कि ईरान जो है वो गार्जियन ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। मसला गड़बड़ है, कोई कभी भी नहीं चाहेगा किसी एक मुल्क का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कंट्रोल हो जाए। ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। अब ये न्यूक्लियर प्लांट से अलग हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।